where we're discussing conservative dentistry. It's a part of all subject conservative as well as endodontics. In all the previous papers related to dentistry, at least 10 to 15 questions will be there which will be directly related to conservative as well as endodontics. In this way, they test your knowledge for RCT, they test your knowledge for restoration, because there is no single day in which you will not perform RCT or restoration in your day to day life as a dentist. Extraction is there, but it is the last uh, choice of treatment. But always you try for conservative approach, because this is the first rule as a dentist, that you always try to save the tooth or conserve the tooth. So in this way you have to be very clear about all these MCQs related to conservative as well as endodontics. We request all of the students to mark your presence. Afterwards we start today's lecture. In the previous lectures we have discussed many things related to endodontics. Okay, so let me ask you something or test your knowledge. What have you studied? Okay, please anyone tell me what is the composition of ladder mix paste? Okay, what are the contents? After finishing any topic, you must be clear with that. There should be no doubts and there should be no lack of content. Because many times what happens, people are in aim of finishing any specific MCQ book. Once I finish this, I will be confident of passing. So remove this logic and always try to clear your concept. How many questions can be asked, or what sorts of questions can be asked which is not there in our book. Okay, so what I mean is, before going with further reading, you always try to revise. So all students have to answer the question, लेडर मिक्स में क्या होता है? ठीक है, after all students join we can proceed further. Till that we have doubt solving as well as revision of the previous topics. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी आ सकता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हम डेली रूटीनली यूज करते हैं, बट व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? विच मटेरियल हैव better properties as compared to calcium hydroxide? What is the disadvantage of MTA? ठीक है, MTA की प्रॉपर्टी तो अच्छी है, लेकिन what is the disadvantage why every dentist does not prefer this material? Okay, let all the students answer. You can type your doubts in the space below. एप्लीकेशन में ही ये पॉसिबल है, यूट्यूब में आपको कमेंट करना पड़ेगा. अभी एप्लीकेशन में हमने ये फैसिलिटी दी है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन करिए. नीचे टाइप योर डाउट्स जहाँ लिखा है वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो उसका आंसर, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो एक इंटरेक्शन वाला लेक्चर होता है. आई हैव टू चेक योर प्रिपरेशन वेदर इट इज़ इन द राइट वे और इट इज़ इन द रॉन्ग वे. So let all the students answer this question. First of all, they will mark their presence. आजकल बच्चे लेट आने लगे हैं, पहले टाइम पर आते थे. पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन थोड़ा होना चाहिए. अभी टीचर्स को थोड़ा इंटरेस्ट है पढ़ने में और पढ़ाने में, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि टाइम तो होना ही चाहिए. आपके पास अगर टाइम और डिसिप्लिन नहीं होगी तो
कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। यू हैव टू फिनिश समथिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। तो भी जो भी बच्चे लाइन में हैं ऑनलाइन, उनको आंसर देना है। कोई बात नहीं, लेदर मिक्स पेस्ट का हम बता रहे हैं कंटेंट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए तो ये वही फायदे रहेगा। लेदर मिक्स पेस्ट में क्या होता है, एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप वाला डेमेक्लोसाइक्लिन आता है, डेमेक्लोसाइक्लिन, और एक स्टीरॉयड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आएगी लेदर मिक्स पेस्ट में। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अच्छी है, हीलिंग में, पेन सबसाइड करता है, ये सब, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है तो फिर पेन तो सबसाइड करेगा ही करेगा, ये भी आप याद रखना। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है। ठीक है, तो एक एमटीए जैसा भी मटेरियल है जो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बायोडेंटिन भी है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, बायोडेंटिन का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर एमटीए, वाई वी डोंट प्रीफर एमटीए, बिकॉज द सेटिंग टाइम ऑफ एमटीए इज अराउंड 4 to 5 years इनिशियल, जो वो लोग बोलते हैं ना कि वो सेटिंग टाइम ज़्यादा है, लॉन्गर सेटिंग टाइम। तो आप थोड़ी पेशेंट को बिठाओगे, यू विल हैव टू कॉल द पेशेंट द नेक्स्ट डे फॉर फर्दर प्रोसेस, और नेक्स्ट डे यू हैव टू चेक। तो सेटिंग टाइम लंबा है, इसलिए वो दैट इज मटेरियल इज नॉट द एजेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, और चॉइस ऑफ एजेंट जो भी आपको समझना है ऐसे समझिए। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं हमारा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का लेक्चर। वी विल डिस्कस अबाउट डेंटल कैरीज। ठीक है, तो डेंटल कैरीज इज ए टॉपिक विच विल नॉट बी confined to only cons endo। ओएमआरडी में भी आएगा वो, ओपी में भी आएगा। अभी बहुत सारी एग्जाम्स होती है कि जब कैरीज होती है तो ट्राइंगल कैसा होता है, इनेमल में ट्राइंगल कैसा होता है, डेंटिन में कैसा होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनेमल से जब चालू होता है तो ऐसे चालू होगा, फिर नीचे नीचे ट्राइंगल बनाएगा, फिर डेंटिन में ऐसा होगा, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे पियर्स पियर्स वो करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी कैरीज के जितने भी टाइप्स है वो आपको याद होने चाहिए। तो डेंटल कैरीज का क्लासिफिकेशन, अब व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू और एनी एग्जाम, दिस इज द बेसिक थिंग। When you don't answer all the hard questions, they will ultimately ask you, please tell us classification of caries, classification of habits. Okay? कुछ लोगों को तो इंटरव्यू में ये भी पूछा था कि डेफिनेशन दीजिए कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की। ठीक है, ये प्रोस्टोडोंटिक्स की डेफिनेशन दीजिए। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, we'll be discussing about tooth structure, enamel। अब आपको ये लगेगा कि ये तो सर हमने डीएडीएच में पढ़ लिया है, लेकिन क्या होता है, आपको ये पूछेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको कंपेयर करने के लिए बोलेंगे। अभी मैं होता तो यही बनाता पेपर कि आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। इससे अच्छा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनेमल की कितनी स्ट्रेंथ है, डेंटिन की कितनी है, सिलिकेट की कितनी है, एमालगम की कितनी है, कंपोजिट की कितनी है। तो ऐसा जहाँ भी आपको टाइम मिले तो ये चार्ट आपको बना देना है, टेबल आपको बना देना है कि ये डेंटिन जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं सिलिकेट सीमेंट के नज़दीक है। ठीक है, तो अभी
एग्जाम में जब जाओगे आप तो सब लोग रटने वाले तो है ही, दे विल mug up. Okay, but when any comparison is asked or anything specific about some material, for example जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट, ठीक है, तो ये हम तो यूज करते नहीं, लेकिन एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट वाले। तो ये टॉपिक्स आपको थोड़े आउट ऑफ द ब्लू लग रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आपको ये दूसरों से थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा जो कभी कभार पल्स में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी आपकी रीडिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो टू स्ट्रक्चर में इनेमल आया, फिर हम डेंटिन की बात करेंगे। इनेमल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम, फिर डिके, व्हाट इज द रीजन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कौन कौन सी थियरी होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और कैरीज, कैरीज का क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए, हाउ टू अरेस्ट दैट ये भी आपको आना चाहिए, कौन कौन से कैरीज अभी डिटेक्टिंग नए नए एजेंट से, कौन कौन से मटेरियल से, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज योर बेस, ठीक है, जिंक फॉस्फेट वाला बेस नहीं, आपका स्टडी वाला बेस, वो इतना फर्म होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि एमलगम है, आपके एग्जाम में पहला एमसीक्यू ऐसा आएगा कि एमलगम वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, ए में होगा कुछ, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन पल्स में है ही नहीं, और आपने बोला था कि पल्स पढ़ लो, पल्स पढ़ लो। वी नेवर टेल यू दिस। तो इसके लिए आपको थोड़ा टास्क करना पड़ेगा, जितने भी मटेरियल्स हैं ना, जितने भी एमालगम, सिलिकेट, कंपोजिट, ठीक है, वो सब के आपको नाम लिख देने हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, यहाँ पे आप मटेरियल लिखिए आपकी नोट्स में, यहाँ पे साइंटिस्ट लिखिए कौन कौन से ले, तो पहले लिखिए एमालगम, तो आएगा ट्रेवकोर ब्रदर्स, फिर आएगा कंपोजिट, तो बोवेन, ठीक है। तो सिलिकेट, ये आएगा फ्लेचर। तो ऐसे हमने याद किया था जब मैंने प्रिपरेशन किया था, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फिर एम टी ए, अब एम टी ए किसने दिया है कमेंट कीजिए जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये सब बता दूंगा तो फिर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर, आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको हमारी कोचिंग एकेडमी बनाए बताएगी, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन में आप कहाँ पे कम आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, आप क्यों मार्क्स नहीं ला रहे हो, 100 में से 20 ही आ रहे हैं, तो कैसे 40 मार्क लाए, 50 मार्क लाए, दैट इज़ अवर वर्क। तो ये सब नोट्स बनाने, ये सब आपको ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए एम टी ए जो था वो किसने दिया हुआ है? वेरी गुड, नाइस आंसर, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर आंसर। तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप कोई भी जीपीएससी का पेपर देख लो ना, 5 या 6 साइंटिस्ट का नाम दिया होगा, ठीक है, ये किसने दिया है, वो किसने दिया है, ठीक है। अब एसिड एच टेक्निक किसने दिया हुआ है? एसिड एच टेक्निक, एसिड एच टेक्निक वाज गिवन बाय, किन्होंने दिया है, और उसमें क्या यूज होता है, 37%, ठीक है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ स्क्रीन पर, जितने भी साइंटिस्ट आ रहे हैं डेंटिस्ट में, जितने भी, आपको अगर थोड़े एक बार लिख लिया आपने सबको, फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे सब साइंटिस्ट आ गए, फिर आपको मुझे व्हाट्सएप या कॉल करना है कि सर अब मुझे सारे साइंटिस्ट के नाम आ गए, तो अब मैं पूछूंगा तुरंत कि चलो भाई आप बताइए मुझे,
ऑर्थो में जो एक्टिवेटर आता है वो किसने दिया है, बायोनेचर आता है वो किसने दिया है। अब मुझे बताइए कमेंट करके एसिड एच टेक्निक किसने दिया हुआ है। नहीं आता है तो ये बताइए, डोंट नो, कोई बात नहीं। एसिड एच टेक्निक इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, बियोनोकोर में। फिर ए आर टी वो अलग है, ए ट्रोमेटिक रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, विथआउट जो ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, कौन से, एरोटर, रोटरी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होगा। एंड से यानी इंस्ट्रूमेंट से आप कैरिज को रिमूव कर दोगे, फिर आप उस तरह से रिस्टोरेशन कर दोगे, ठीक है। अब आता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग। व्हेन यू चेक दैट देयर इज कैरीज इन द टूथ, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका है क्या डायग्नोसिस, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, सुपरफिशियल है, रूट कैरीज है, लोकेशन के हिसाब से कैरीज है, टाइम के हिसाब से कैरीज है, क्रॉनिक है, एक्यूट है, ऑल दिस फैक्टर्स मैटर। फिर उस हिसाब से आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाएगा पहले, फिर आपको इन्वेस्टिगेशंस करना है, तब जाके फाइनल डायग्नोसिस बनता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है, एक तो कैरीज डिटेक्शन डाई होती है, फिर क्या होता है, आईओपीए होता है, ठीक है। अगर पस ड्रेनेज है, स्वेलिंग है, तो आप एस्पिरेट भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस में आएगी, ठीक है। नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, उसका मैकेनिकल एडवांटेज, ये ओरल सर्जरी में भी आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा काम देता है, कौन सा कम देता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, एलिवेटर का कितना होता है, क्रॉस बार का कितना होता है, और हमारा पेरियोस्टल जो मोल्ट होता है उसका कितना होता है। तो ये अलग अलग वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो आपको ये दूसरे नोट्स में ये भी बनाना है कि जितने भी डिजिट वाले हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। तो ये जितने भी वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसको आपको अलग से नोट्स बना देना है, ठीक है। अभी आप अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे तो लास्ट में अक्टूबर और नवंबर में कोर्स जब हमारा पूरा हो जाएगा ना, तब हम वर्कशॉप करने वाले हैं। हर एक दिन 100 या 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर हर एक एवरी डे। तो तब जाके आपको नोट्स ही पढ़ना है, आपको ये फिर से रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। जीबी ब्लैक का क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा जो थर्ड ईयर हमने स्टार्ट किया तब तो ये बहुत रट लिया होगा, क्योंकि ये जब आता होगा तभी आपको पेशेंट करने देंगे। फिर कैविटी प्रिपरेशंस, अलग अलग टाइप के कैविटी 1 2, स्पेसिफिक प्रिपरेशंस, कन्वेंशनल अगर कंपोजिट होता है तो उसमें कैविटी प्रिपरेशन के रूल्स के हिसाब से नहीं करते, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप का स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है। एमलगम, ठीक है। अभी एमलगम एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करता नहीं है, लेकिन उसके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। कॉपर का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है, टिन का क्या रोल है, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एमलगम के एमसीक्यू को तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इन मेनी एग्जाम्स वी कैन फाइंड एमलगम क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ईएम्स टेक्निक, ई ए एम ई एस टेक्निक क्या है, कमेंट करके बताइए। नहीं आता है तो डोंट नो लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ।
कभी कभार इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, ईएम्स टेक्निक, तो आप सोचोगे कि ये क्या है। ठीक है। और इजी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो एमालगम का डेफिनेशन आपको पूछ लेंगे, व्हाट इज एमालगम एलॉय। ईएम्स टेक्निक में क्या होता है, मर्क्यूरी और एमालगम का जो एलॉयज होते हैं वो 1:1 रेशियो में यूज करना है। मिनिमल मर्क्यूरी यूज करना है ताकि मर्क्यूरी ज़्यादा कंटामिनेट ना हो और ज़्यादा यूज होने से उसकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। तो ये वो टेक्निक है। ठीक है। और एमालगम एलॉय में क्या होता है, इट इज एन एलॉय इन विच मर्क्यूरी इज वन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है। ऐसे भी कुछ कभी कभार क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो एमालगम में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका कंपोजिशन। तो आप उसका कंपोजिशन, उसका रोल, और वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये सब आपको ठीक से याद रख लेना है। अब आता है कंपोजिट रेजिन और ग्लास आयनोमर। तो अलग अलग बॉन्डिंग जनरेशन आ गई है। हम जब पढ़ रहे थे एमसीक्यू के एग्जाम, तब 6th वाला जनरेशन था, नया नया। अभी तो मुझे लग रहा है 8 तक पहुंच गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। 7 तो है ही। ऐसे अलग अलग बॉन्डिंग सिस्टम्स दी गई है। फिर कंपोजिट रेजिन और जीआईसी और कंपोजिट रेजिन के बीच में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन सी नए नए मॉडिफिकेशन है, सैंडविच टेक्निक आती है। ठीक है। नीचे कंपोजिट रख दो, ऊपर जीआईसी कर दो, ये भी आता है। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो आज हम हमारा जो लेक्चर है वो चालू करते हैं। पहले आता है डेंटल कैरीज। तो पहले आप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। ठीक है। एपेटाइट ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्स एपेटाइट, दो आर द मेन इंग्रेडिएंट्स और द कंटेंट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोक्स एपेटाइट क्या होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, वो वाइट पाउडर की तरह होता है और उसका बायो रिजॉर्प्शन लो होता है। ठीक है। तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से फर्म स्ट्रक्चर बनाकर रखेंगे, रिजॉर्प्शन कम होगा ना इसलिए। फिर कार्बोनेटेड सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सीएपेटेट। ठीक है। अब हाइड्रोक्सीएपेटेट के अंदर कार्बोनेटेड, वो थोड़ा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो मेन कंपोनेंट ऑफ इनेमल एंड डेंटिन है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोक्सीएपेटाइट मेन कंपोनेंट है इनेमल और डेंटिन का। ठीक है। फिर वो कहाँ पे देखने को मिलता है कार्बोनेटेड वाला, वो डेंटिनो इनेमल जंक्शन पर देखने को मिलेगा। और जहाँ पे सरफेस ऑफ टूथ होता है, इट इज मोस्टली फ्लोरेपेटाइट। ठीक है। तो फ्लोरेपेटाइट होगी ना, वो अच्छी प्रॉपर्टी वाला होगा। ठीक है। इट्स प्रॉपर्टी विल बी बेटर एज कंपेयर टू सी एच है। तो ऐसे आपको नोट्स में लिखना है। सी एच ए थोड़ा रिजॉर्व हो सकता है, लेकिन फ्लोरेपेटाइट जो सरफेस पर होगा ना, वो रिजॉर्व होगा नहीं। ठीक है। तो फ्लोरोपेटाइट में क्या है, इट इज 85% हाइड्रोक्सीपेटेट बाय वॉल्यूम एंड 95% बाय वेट। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है एमिलोब्लास्ट ले डाउन दिस यूनिट्स इनटू लॉन्ग क्रिस्टलाइट्स। ठीक है। अब एमिलोब्लास्ट है ना, वो कौन से सेल्स हैं जो इनेमल बनाते हैं। हमने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में, हमारे टाइम अलग था, डीएडीएच था, वो सेकेंड ईयर में आता था, आपके टाइम फर्स्ट ईयर में है। तो हमने सेकेंड ईयर में ये पढ़ा था कि एमिलोब्लास्ट है वो इनेमल बनाते हैं। ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे इनेमल, तो यहाँ पे लिखा है, दे ले डाउन द यूनिट्स इनटू लॉन्ग क्रिस्टलाइट्स।
ठीक है, एंड देन टर्न इनटू इनेमल रोड्स। ठीक है, तो एमिलोब्लास्ट से क्या होता है, इनेमल रोड्स बनते हैं, इनेमल बनता है। तो इनेमल रोड्स की प्रॉपर्टी क्या होता है, एक हेड होता है और नीचे उसकी टेल होती है। ठीक है, टेल में मिनरल कंटेंट कम होता है और वहाँ पे डीके होने के चांस ज़्यादा है। तो अभी ये समझिए, थोड़ा आपने कंटेंट तो समझ लिया, तो एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। विच पोर्शन ऑफ enamel is most susceptible और most prone to decay। तो आपको टेल आएगा आंसर। टेल में क्यों है, क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट कम है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। फिर हम आगे समझते हैं डीके में क्या होता है। एक तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हाउ इट इज डिकेड और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीके। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो है ही, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, Ca10 PO4 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट का ये फॉर्मूला है। अब वो क्या करेगा, वो शुगर की जब एंट्री होगी, ठीक है, मतलब शुगर हम खाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभार पेशेंट का पुअर ओरल हाइजीन होता है, उसका जो हाइजीन मेथड्स है वो खराब होते हैं, कभी कभार उसके बैक्टीरिया मोर एक्टिव होते हैं। तो शुगर को क्या करेंगे, कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होंगे ना, उसको फर्मेंट कर देंगे और H+ रिलीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो फर्मेंटेशन के बाद H+ आयन रिलीज कर देंगे और ये स्ट्रक्चर को थोड़ा खराब कर देंगे। कैसे, ये स्ट्रक्चर को कैल्शियम और हाइड्रोक्सी एपेटाइट उसमें थोड़ा अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे, जब कैरियोजेनिक बैक्टीरिया फर्मेंट करेंगे ना, तो ये आयन होगा और वहाँ पे जाके ये डिजोल्व होगा, फिर वही जाके स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये रिवर्सिबल वाला है। ठीक है, बट आप सोचो कि ये बैक्टीरिया के काउंट ज़्यादा है, ठीक है, तब जाके ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले सेंटेंस में लिखा है एक बैलेंस होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, जब टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा। तो यहाँ पे भी बैलेंस यही होता है, एक हाइड्रोक्सीएपेटाइट के बीच बैलेंस होता है और कैल्शियम और फॉस्फेट सलाइवा के अंदर उसमें बैलेंस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये नॉर्मल तो बैलेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया। तो शुगर ऐड कर दिया और आपके पास प्रॉपर हाइजीन वाला मेथड कोई नहीं है, शुगर फूड होता है, कोई स्टिकी सब्सटेंस होता है, दांत पर रह जाएगा। तो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, उसको फर्मेंट कर देंगे और लैक्टिक एसिड रिलीज करेंगे। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। ठीक है, किसको, फॉस्फेट आयन को, और फॉस्फोरिक एसिड वो बना देगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनेगा ना, फिर वो दांत को डीके की प्रोसेस चालू करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन राइट की ओर मूव होता है। ठीक है, राइट की ओर मूव होता है मतलब कि वो राइट की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस टूथ में से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, टूथ में से जो इंटीग्रिटी होती है कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस की, वो नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा,
उससे टूथ का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में अगर पूछे जाए कि आप कैरीज मैकेनिज्म समझाइए, तो आप रिएक्शन भी बोल सकते हो। ये रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो राइट मूव होता है रिएक्शन। ठीक है, राइट साइड थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होता है इसलिए राइट होता है। और प्रोटॉन कहाँ से आता है? जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं ना, वहाँ से प्रोटॉन रिलीज होता है और वो क्या करेगा? फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। तो इन शॉर्ट, बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे, टूथ को डिके करेंगे और कैरीज का इनिशिएशन वहाँ से चालू होता है। ठीक है, अब स्टीफंस कर्व। स्टीफंस कर्व क्या है कि आपको जो ओरल पीएच होता है मुंह के अंदर, पीएच जो मेंटेन करता है बैक्टीरिया, सलाइवा, बफरिंग मैकेनिज्म्स, वो कैसे टाइम के साथ बदलता है। ठीक है, तो ये आपको पीएच का कर्व है, स्टीफन कर्व है ना, वो कैरिस के साथ जुड़ने के लिए पीएच का कर्व है। तो पहले ये समझिए, नॉर्मली 7 होता है। ठीक है, फिर आपने कोई फूड ऐसा खाया कि जो कैरियोजेनिक होता है, या ऐसा एसिडिक फूड खाया कि वो एसिड बनाएगा और टूथ को खराब करेगा, डिके करेगा। ठीक है, तो पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, एसिडिक फूड खाने से या कैरियोजेनिक फूड खाने से बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे, एसिड को रिलीज करेंगे और वहाँ पे पीएच को एसिडिक बना देंगे। इट मीन्स pH will lower from 7 and it will tend towards 4 or 5। ठीक है, तो 5.5 ऐसा pH है, ठीक है, कि वहाँ तक इनेमल उसको विथस्टैंड कर सकता है, उसके बाद इनेमल खराब हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू हो गया। व्हाट इज द क्रिटिकल पीएच? तो आपको 5.5 लिखना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको जो वैल्यू है वो भी आपको साइड में लिखनी पड़ेगी। भाई वैल्यू के जितने भी इक्वेशन है वो आपको सब अलग से नोट्स उसके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये अगर आप क्वेश्चन आ गया तो आपको फिर आना चाहिए। फिर 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, पहले क्या हुआ, 7 पर पीएच था, हमारे रीडर में थोड़ा दिक्कत आ गया है, शायद स्क्रीन बंद हो जाएगी, फिर वापस चालू होकर करना पड़ेगा। तो समझिए स्टीफन्स कर्व, आपके मुंह के अंदर पीएच 7 है, आपने चॉकलेट खाई, बैक्टीरिया को मजा आ गया, वहां पे एसिड रिलीज किया, पीएच आपका कम हो गया, 5.5 तक तो आएगा ही, उससे भी कम आ सकता है। ठीक है, 5.5 तक तो कोई दिक्कत नहीं, कम आ गया तो एनिमल का डिमिनरलाइजेशन, टूथ का डिमिनरलाइजेशन चालू, डीके चालू। ठीक है, फिर हमारे सलाइवा, जो हमारे रक्षक है, सेनापति है, वो आकर सबको दौड़ा लेंगे, सबको मार देंगे कि चलो बाहर निकलो, और पीएच को वापस 7 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टीफन कर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्रिटिकल पीएच कितना है और बफरिंग होता है, और स्टीफन कर्व होता है वो किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि कैरीज मैकेनिज्म, फिर ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। अभी जब ऑप्शन अलग अलग पूछेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि स्टीफन ने कुछ कैरीज के बारे में तो दिया ही नहीं, क्योंकि जब भी कैरीज आता है तो हमको मिलर पाई याद आता है। मिलर पाई की कोई एसिडोजेनिक थ्योरी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो स्टीफन भाई याद हमको नहीं आते, याद रखना। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए।
फिर वही दिया है, सलाइवा किसी में नहीं पेशेंट में काम करता है, तो आपको बफरिंग के लिए और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टूथपेस्ट से कर सकते हो, ठीक है। टूथपेस्ट क्या करता है, फ्लोरापेटाइट करेगा और ऊपर के जो लेयर होगा टूथ का उसको मोर रेजिस्टेंट बनाएगा। तो अभी दूसरी बार आ रहा है, विच ऑफ दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू कैरीज और मोस्ट रेजिस्टेंट टू डीके, तो आएगा हमारा फ्लोरापेटाइट, ठीक है। फ्लोरापेटाइट इज बेटर देन हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये आपको आपके नोट्स में लिख देना है। अब फ्लोरापेटाइट आएगा ना, तो उसमें रोबस्ट स्टीफन कब आएगा। रोबस्ट का मतलब क्या है कि वो थोड़ा पीएच कम होगा लेकिन तुरंत ही वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फ्लोरापेटाइट का नॉर्मल पीएच कितना है, 4.5, ठीक है, क्रिटिकल पीएच। अब क्रिटिकल पीएच का मतलब क्या है, वो उस पीएच तक वो टूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं डीके तक। तो इनेमल का है 5.5, पीएच उसके नीचे जाएगा 4 या 5.2, तब डीके स्टार्ट होगा। इसका है 4.5, तो अगर इनेमल में सोचो कि फ्लोरापेटाइट आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया तो आपको और भी रेजिस्टेंस मिलेगा, कैरीज डीके से बचने का मौका मिलेगा। फ्रीक मतलब डेंटिन एंड सीमेंटम, उसका तो बहुत ही खराब है, ठीक है। 7 है, थोड़ा कम हुआ 6.7 तक, तो सीमेंटम खराब होना चालू हो जाएगा। इसीलिए तो रूट कैरीज होता है तब प्रोग्नोसिस पुअर होता है, ठीक है। रूट कैरीज, अब रूट कैरीज का एक एमसीक्यू है मोस्ट कॉमन, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोमाइसिस ये ऑर्गेनिजम्स है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, रूट कैरीज विच ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट कैरीज, तो आंसर आएगा एक्टिनोमाइसिस। अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ये तो सिंपल एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, कभी कभार ये आपको नोट्स मिलेंगे नहीं, तो आप कहाँ ढूंढने जाओगे। इससे अच्छा है कि हमने जो नोट्स दिया है वो आप थरली पढ़ लो और इसकी भी बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाओ। और याद रखना है, अगले लेक्चर में ये पूछूंगा, आप मुझे क्रिटिकल पीएच बताइए, ठीक है। अब फ्लोराइड मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जब हमने पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री पढ़ा था तब हमको ये सिखाया गया था कि फ्लोराइड क्या करता है। एक तो रीमिनरलाइजेशन करता है, ठीक है। रीमिनरलाइजेशन मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे टेंड करता है, इसलिए ए साइड मूव हुआ तो लेफ्ट मूव होता है रिएक्शन, ठीक है। डीके होता है तो राइट होता है, याद रखना, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने राइट और लेफ्ट का फंडा बनाया हुआ है। तो रीमिनरलाइजेशन होगा और इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर चला जाएगा। इनेमल सोल्युबिलिटी, फ्लोराइड खाली रीमिनरलाइजेशन तो करेगा, नए मिनरल्स ऐड करेगा, फिर क्या करेगा, इनेमल को मजबूत बनाएगा, सोल्युबिलिटी उसकी कम कर देगा। और तीसरा, फ्लोराइड सीधा अटैक करेगा बैक्टीरिया पर। तो ये तीनों मैकेनिज्म आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए कि जब भी फ्लोराइड का क्वेश्चन आता है तो ये तीन मैकेनिज्म तो आपको बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई इज फ्लोराइड इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री, यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। डीफ्लोरिडेशन कैसे करोगे, कम्युनिटी में फ्लोराइड कम है तो कैसे फ्लोराइड ऐड करोगे, ज़्यादा है तो कम कैसे करोगे, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कैरीज, ठीक है। मल्टीफैक्टोरियल है और तीन चीज़ों के बीच वो इंटरेक्शन होता है, यहाँ चार दिया है, एक तो बैक्टीरिया, डाइट, होस्ट और टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कैरीज। ठीक है, तो ये चार में से कोई एक नहीं होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो बायोफिल्म आएगी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डाइट जो आप स्वीट सब्सटेंसेस खाते हो, होस्ट फैक्टर्स कभी कभार पेशेंट का होस्ट इम्यूनिटी कम है, और टाइम लंबे समय तक आप टूथ को क्लीन नहीं करते हो, आप ठीक से प्रॉपर ओरल हाइजीन मेथड्स नहीं यूज कर रहे हो, तब जाके ये फैक्टर काम आता है। ठीक है, अब कैरीज के अंदर जो प्राइमरी मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो टूथ की एनाटॉमी, सलाइवा, बायोफिल्म, फ्लोराइड, डाइट, हाइजीन, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक। ठीक है, वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कैरीज इनिशिएशन, प्रोग्रेस एटसेट्रा। और अब सेकेंडरी, एक तो ये सब फैक्टर्स हो गए, उसको बढ़ावा कौन कौन देता है, तो एक तो एक इकोनॉमिक स्टेटस, बोलते हैं ना कि कुछ लोग गरीब होते हैं उनको तो टीथ की परवाह ही नहीं होती, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, एज, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। ठीक है, अब ये किसका डायग्राम है, मॉडिफाइड केस जॉर्डन डायग्राम, याद रखना। अगर यहाँ पे तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन चालू नहीं किया जीपीएससी ने, लेकिन अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस चालू कर दिए तो ये आपको दिक्कत रहेगी कि ये कौन सा चार्ट है, कौन सा साइंटिस्ट ने ये दिया हुआ है ये। अब लीजेंस के बारे में तो आपको पता ही है कैसे चालू होता है। ठीक है, पहले पिट एंड फिशर होता है, फिर स्मूथ सरफेस होता है, रूट सरफेस तक पहुंच जाता है, ये अलग अलग टाइप के आता है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस की क्या है, स्टार्ट्स वाइड, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा और फिर नैरो हो जाएगा अंटिल डी जे। ये ज़्यादातर डेंटिन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इनेमल में क्या होता है, पिट एंड फिशर वाला होता है, ऊपर से नैरो नीचे वाइड। ठीक है, ये तो कॉमन लॉजिक ही है, जब भी हमारा दांत खराब होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक पॉइंट होता है खड्डा, फिर इनेमल तक जाता है और फिर यहाँ से चालू होकर डेंटिन में नीचे तक जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा लॉजिक बना देना है। अब रूट सरफेस में जो कैरीज आ जाती है ना, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है रैपिडली, बिकॉज नो इनेबल। और कौन से ऑर्गेनिजम्स बताए आपको मैंने, एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, ये आपको बार बार जितने भी ऑर्गेनिजम्स वाले क्वेश्चन है ना, आपको पूछेंगे प्रेगनेंसी में कौन से आते हैं, तो एक तो पी इंटरमीडिया आएगा और एक पॉलीफोरम जिंजाइवलिस, ये दोनों के सिवाय कोई आता नहीं है। तो ये कोरिलेशन आपको याद रखना है, और ऐसे अगर एमसीक्यू आ गए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब जाके आप याद करोगे क्या था क्या नहीं। इन्फेक्टेड डेंटिन और अफेक्टेड डेंटिन में क्या फर्क है, यहाँ पे इन्फेक्टेड और यहाँ पे अफेक्टेड। तो इन्फेक्टेड जो डेंटिन होता है ना, वो सुपरफिशियल होता है। ठीक है, वो डेंटिन के नज़दीक नहीं होता है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली इन इनेमल, फिर डेंटिन तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सुपरफिशियल होता है, याद रखना। ठीक है, इनेमल में ज़्यादा होता है, डेंटिन में कम होता है। और ये जो होता है अफेक्टेड, वो ऊपर नहीं होता है, वो नीचे। तो ये समझिए कि जैसे जैसे कैरीज आगे जाता है ना, तो पहले वो अफेक्टेड करता है, पहले वो अफेक्ट करता है, फिर इन्फेक्ट करता है, क्योंकि एबीसीडी में पहले ए आता है, फिर आई आता है। तो पहले अफेक्ट करेगा, फिर इन्फेक्ट करेगा। तो कैरीज क्या करेगा, यहाँ से चालू होगा, तो पहले ये अफेक्ट होगा, फिर ये इन्फेक्ट होगा, तो यहाँ इफेक्ट होगा, फिर इन्फेक्ट। तो एक समय ऐसा आएगा कि नीचे का ही जो होगा वही अफेक्टेड हो सकता है, पहले इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा याद रख लेना है। फिर जो अफेक्टेड होता है ना, वो हम कभी कभार रख भी सकते हैं डेंटिन
में जो अफेक्टेड डेंटिन होता है ना, वो पल्प की वाइटैलिटी और पल्प की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए हम अफेक्टेड डेंटिन को ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि लॉजिक ऐसा है कि अफेक्टेड डेंटिन रख दिया और इन्फेक्टेड डेंटिन को निकाल दिया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो सोर्स होते हैं एसिडोजेनिक, वो बैक्टीरिया ही चले जाएंगे, तो अफेक्टेड डेंटिन धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा और आगे जाके वो स्प्रेड नहीं होगा कैरीज। ठीक है, तो ये लॉजिक से अफेक्टेड डेंटिन आपको बचा देना है। तो वो कैसा होगा? डीपर होगा, ड्राई लेदरी होगा, डीमिनरलाइज्ड होगा, लेकिन बैक्टीरिया नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, इसलिए हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अफेक्टेड डेंटिन के पीछे रहने का क्या फायदा है? एक तो बैक्टीरिया उसमें है नहीं, और वहाँ पे आगे बैक्टीरिया बनेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर का जो सोर्स है वो आपने उसके ऊपर बेस या लाइनर लगा दिया है, तो कोई भी स्वीट सब्सटेंस या कोई बैक्टीरिया उसमें पेनिट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, फिर कैरीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो इंसिपिएंट या रिवर्सिबल, शुरुआत में होता है स्मूथ सरफेस पर, फिर वो रिवर्सिबल भी हो जाता है। ठीक है, फिर कैविटेटेड और इरिवर्सिबल, मतलब खड्डा हो गया है और वो वापस इनेमल बनेगा नहीं उसमें। फिर डिपेंडिंग अपॉन द लीजन्स, एक सरफेस पर होता है तो सिंपल, दो पर होता है तो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मतलब तीन। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, अलग अलग जगह पर कैरीज भी देखने को मिलती है। तो एक जगह पर होता है, वहाँ ही आपको बोलोगे तो उसका होगा ओरिजिनल लोकेशन, और ओरिजिनल रीजन वहाँ पे प्राइमरी कैरीज बोलेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है कि वो जहाँ सोर्स कुछ अलग होता है और टूथ और रिस्टोरेशन के बीच ऊपर से जो माइक्रो लीकेज होता है, तो रिस्टोरेशन के नीचे और टूथ के ऊपर। ठीक है, जंक्शन ऑफ टूथ और रिस्टोरेशन, जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ पे माइक्रो लीकेज के कारण कैरीज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी और रिकरेंट। और तीसरी, जो हमने ट्रीटमेंट कर दी और पूरे के पूरे बैक्टीरिया को निकाले नहीं, तो कभी कभार वो रह जाते हैं और वो फिर से कैरीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल कैरीज। अब आता है रेट। ठीक है, एक तो आता है एक्यूट, जो फास्ट स्प्रेड होता है और बहुत सारे टूथ को इन्वॉल्व कर लेता है। क्रॉनिक धीरे धीरे करता है। एरेस्टेड, तो उसमें क्या होता है, क्रॉनिक स्टेजेस में ऐसा टाइम आ जाता है कि पेशेंट में हार्ड डेंटिन जैसा कैरीज हो जाएगा, पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और उसका एडेप्टेशन हो गया होता है। ठीक है, तो ये एरेस्टेड कैरीज ऐसे होती है। ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, कैरीज के पीछे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, तो आपको ही पता है स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। अब स्टेफेलोकोकस कैसे अरेंजमेंट होता है और स्ट्रेप्टोकोकस की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो मुझे देखकर बताइए। इसमें से कौन सा अरेंजमेंट स्ट्रेप्टोकोकाई का है और कौन सा अरेंजमेंट स्टेफेलोकोकाई का है? कमेंट करके बताइए और उसके बारे में डिफरेंस बताइए।
ये तो हमने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है, आपको तो आता ही होगा। प्लीज कमेंट, आपको नहीं आता है तो डोंट नो लिखिए, क्योंकि कभी कभार आपको भी ये इंटरेक्शन करना पड़ेगा। नहीं आता है तो सही बात है। स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो ग्रेप्स, तो ये हमको ग्रेप्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स होती है, और स्ट्रेप्टोकोकाई चेन लाइक क्लस्टर्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकस की थोड़ी डिटेल्स। ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, वो क्या करते हैं, ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज करते हैं, उससे सुक्रोज को कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फिर क्या होता है, ये जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो बैक्टीरिया को मदद करते हैं स्टिक होने में, ठीक है। वो फेविकोल बनकर टूथ को स्टिक कर देते हैं। एक बार स्टिक हो गए फिर तो वो कॉलोनी बनाएंगे, नए नए टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, नए नए एसिड रिलीज करेंगे, ठीक है। एसिडोजेनिक है और एसिड्यूरिक है, ठीक है। तो एसिडोजेनिक का मतलब क्या है, वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, और एसिड्यूरिक मतलब उसको एसिड में रहना पसंद है। दे लिव दे लव टू लिव इन एसिड एटमॉस्फेयर। प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन, ठीक है। वो ऐसे इंसान या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने कॉम्पिटिटर को मार देता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। आपको भी आपके जो कॉम्पिटिटर है जीपीएससी के, उसको ख़त्म कर देना है। हमारे एकेडमी में जुड़े हो आप तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये थोड़ा डिफरेंस लगेगा। लेकिन कोई बच्चा अभी हमको नोट्स बनाकर भेजता ही नहीं कि सर मैंने ये इतनी नोट्स बनाई, प्लीज़ सेंड टू मी सो दैट आई कैन इवेल्युएट, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो लैक्टोबैसिलस वाले होते हैं ना बैक्टीरिया, वो डेंटेनल कैरीज मतलब सुपरफिशियल, और रूट कैरीज में आएंगे हमारे एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, याद रहे, भूलना नहीं। रूट कैरीज। फिर सलाइवा के अंदर क्या क्या है जो कैरीज को रोकता है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हाउ डज सलाइवा प्रिवेंट कैरीज प्ले रोल इन द इम्यूनिटी। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करते हैं, ठीक है, और स्वेलोइंग करके बाहर चले जाते हैं। यूरिया और बाइकार्बोनेट होता है उसमें, वो क्या करते हैं, एसिड को बफर करते हैं। लाइजोजाइम तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की वॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लैक्टोफेरिन, फेरिन मतलब आयरन, आयरन के अंदर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। वो एक बार बाइंड हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, एंजाइम्स मिलेंगे नहीं बैक्टीरिया को। फिर लैक्टोपेरोक्सीडेज, वो इनएक्टिवेट कर देंगे एंजाइम्स को। सलाइवरी आईजीए, ठीक है, वो सलाइवरी एंटीबॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया है। तो अभी आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, बहुत सारे गामड़े ऐसे हमने याद रखा था, जीएमडी। इसका एक एमसीक्यू तो होता ही है, तो क्या करोगे आप, अभी से ही चालू कर दीजिए कि आईजीजी के बारे में क्या क्या होता है, आईजीए के बारे में हम जब पढ़ाएंगे आपको पैथोलॉजी तब ये तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप थोड़ी तब तक वेट करोगे।
आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास माइंड भी है। तो ये जो मैं हिंट दे रहा हूँ वो एमसीक्यूज धीरे धीरे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे कि इसमें से कोई अगर एमसीक्यू आएगा तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर मिनरल्स, मिनरल्स क्या करेंगे, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होगा वो रिएक्शन को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। ठीक है। फिर से बता रहे, जब भी रीमिनरलाइजेशन होगा तो रिएक्शन लेफ्ट में मूव होगा, डीके होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, क्योंकि आगे आगे हम जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में। हम कल या परसों ये बाकी का लेक्चर करवा देंगे। इट इज़ मोस्ट मतलब 70% जितना कॉन्स एंडो पूरा हो गया है, 30% ही बाकी है। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, आपको ठीक से नोट्स बनानी है। ठीक है। और आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना आज के लिए इतना काफ़ी है। ये लेक्चर हम पूरा कर देंगे तो आपको थोड़ा रिवीजन में और थोड़ा नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। तो यू टेक योर टाइम एंड वी विल बी जॉइनिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आइदर टुमारो और आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। तो you have to prepare in this way where in which I am explaining. You have to first be curious about what type of questions will be asked. Then you create certain notes. अभी मैंने जैसे बताया कि आईजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो 5 टाइप्स के आते हैं, तो उनके बारे में आपको सब पीएचडी कर लेना है कि एम कहाँ आता है, डी कहाँ आता है, ई कहाँ आता है, ऐसे। ठीक है। कैरिज में भी स्ट्रेप्टोकोकाई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेना है। यहाँ पे देख लो रेडीमेड नोट आपको मिल गया कि सलाइवा के अंदर ये चीज़ें हैं और इसके रोल्स, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। अगर आप याद नहीं करोगे तो कभी कभार आपको भूल हो जाएगी। क्या होगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सलाइवा, ये 3-4 होंगे और एक नहीं होगा, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो you have to prepare well and prepare confidently, sir this is the answer and this is the topic which I have read। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे वीडियो, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ है। सारे डेंटल के सब्जेक्ट की, जीके की, हिंदी की, जो भी हिमाचल प्रदेश की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे हिंदी भी एक सब्जेक्ट आ रहा था, वहाँ भी टेस्ट है। तो आप इंडिया में अगर कहीं भी देख रहे हो, कोई भी पीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो हमारा टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। भरपूर टेस्ट दीजिए, अनलिमिटेड दीजिए, उससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको आप इवेल्यूएट कीजिए, उसको आप पढ़िए। वो अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो हमको मैसेज कीजिए, सर आई एम वीक इन दिस टॉपिक्स, वी विल डिस्कस दैट। तो इट इज़ टाइम फॉर एंडिंग। हमारा जो ये एप्लीकेशन है उसमें हमने टेस्ट रख दिया है, शायद एंडो का, फिर जीके का भी है, एनाटॉमी का भी है। तो ये आपको टेस्ट देना है और इवेल्यूएट भी आपको वहाँ इंस्टेंट हो जाएगा टेस्ट में। तो गाइज, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव a nice time, thanks for watching us, please like and subscribe our channel।